Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System, and today is our fourth lecture for the course of Seismic Design of Structures. This course basically is for MSc Civil Engineering with a specialization in Structural Engineering, and I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 4 and week number 4. So in our today's topic, we will discuss about the seismic design limit states. While analyzing or designing any type of earthquake resistant structures, what are the basic limits, design limits we have to follow, और design limits को हम किस तरह से apply करते हैं real industry के अंदर, वो design limits basically कौन सी हैं, आज वही हम discuss करते हैं. These are your reference text books. इन books के अलावा अगर आपके पास relevant to the course कोई और book available है तो वो भी आप follow कर सकते हैं. Summary of the previous lectures. In this course, first of all, we discussed about the earthquake. उसके बाद हमने seismology, engineers of earth पढ़े. Then we discussed about the tectonic plates, causes of earthquakes and plastic rebound theory. उसके बाद हमने seismic waves, its types and how ground motions are generated from the seismic waves discuss किए. And then we discuss about the earthquake parameters. We have two most important parameters that are magnitude of the earthquake, it means the size of the earthquake, and then we have also discussed about the intensity of earthquake, how it's affecting the overall human behavior, overall structures, human lives, और intensity को हम किस तरह से represent कराते हैं. And then we discuss the methods of measurement of earthquake, how we can measure the earthquakes basically by using seismographs or accelerometers. And then we also discuss about the important parameters and what are the factors to be considered while analyzing any type of earthquake resistant structures. So in our today's lecture, first of all, we will discuss about the seismic design limit states. There are three major types of seismic design limit states. Number one is the serviceability limit state, and second is the damage control limit state, and then we will discuss about the survival limit state. So what is major difference between them, we will also discuss. And then we will consider what is seismic risk, how we measure the seismic risk, or how we categorize it as a seismic risk, जो कि हमने consider करना है while analyzing any type of structure. And what are the economical considerations? कि economical choices जो है वो हमारे पास हमेशा हमारे mind में होती है कि कोई भी structure, कोई भी चीज़ जो है वो हम बनाते हैं. Two major important parameters होते हैं. Number one is basically the quality, and second is the economical conditions या quantity. How we can manage the quantity and quality by considering the economical conditions, वो भी आज हम discuss करेंगे. So coming back to the topic, seismic design limit states. It is customary to consider various levels of protection, each of which emphasizes a different aspects to be considered by the designer. कि आप जब कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करने लगते हो या डिजाइन करने से पहले यू मस्ट हैव समथिंग इन योर माइंड रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन, कि हाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हैजर्डियस जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उनसे हम इस स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ब्रॉडली दीज रिलेट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शनलिटी, कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस स्ट्रक्चर का कोई फंक्शन है. Let's suppose we have a university building. So university building का एक अपना फंक्शन है, it's providing us accommodation, जिसके अंदर हम बैठते हैं, अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, सारी चीजें. तो एक आपके पास मस्जिद है, फॉर एग्जांपल मस्जिद जो है वो किस लिए हम बनाते हैं, इबादत के लिए. एक आपके पास ऑफिस बिल्डिंग है, एक आपके पास जो है वो टेलीकम्युनिकेशन बिल्डिंग है, एक आपके पास जो है वो इवन पावर प्लांट्स हैं. तो एनी टाइप ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग हैव डिफरेंट फंक्शंस. तो हमारा जो मेजर पर्सपेक्टिव होता है while analyzing or designing any type of structure, we must have to focus regarding the preservation of the functionality. स्ट्रक्चर का फंक्शन जो है वो रुकना नहीं चाहिए. So different degree of efforts to minimize damage, कि हम एफर्ट अप्लाई करते हैं कि कम से कम डैमेज हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो अफेक्ट करे. इवन इन सम केस ऑफ अगर एक सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक आ जाता है, देन वी कैन कम से कम जो है वो हम किसी की जिंदगी बचा सकें. That was our major perspective. The degree to which levels of protection basically can be afforded depends upon the economic constraints. Again वही बात कि जब आपके पास एक क्वालिटी की चीज आती है, again we don't have to focus on the cost.
लेकिन हमने एक रीजनेबल अमाउंट यूज करके हमने एक प्रॉपर जो है वो एक फंक्शनल स्ट्रक्चर डेवलप करना है, डिजाइन करना है. While regions of seismicity are now reasonably well defined, the prediction of a seismic event within the projected lifespan of the building is extremely crude. कि जिस रीजन के अंदर आप एक स्ट्रक्चर डेवलप करने लगे हो, उस रीजन के अंदर एक प्रेडिक्शन लाइफ हमारे पास होनी चाहिए कि कम से कम हम ये अंदाजा लगा सकें कि लास्ट इतने अरसे के बाद एक अर्थक्वेक, एक ड्यूरेशन के बाद एक अर्थक्वेक वहां पे उस एरिया के अंदर डेवलप होता है. आया वो अर्थक्वेक हमारे उस स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ के अंदर तो नहीं है. तो ये चीज हम बेसिकली चेक कर रहे होते हैं. नाउ नंबर 1, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट. कि हम पहली कंडीशन के अंदर स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं. दैट कंडीशन बेसिकली इज नोन एज द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट. इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं रेलेवेंट फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स इंड्यूसिंग कंपैरेटिवली माइनर इंटेंसिटी ऑफ ग्राउंड शेकिंग. कि कम से कम वो एरियाज या कम से कम उस रीजन के अंदर हल्के फुल्के जो अर्थक्वेक्स आते हैं विद मिनिमम या एक लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड मूवमेंट होती है, शुड नॉट इंटरफेस विद द फंक्शनलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. कि पहला केस क्या था कि हम स्ट्रक्चर हमारा उस रीजन के अंदर बना रहे हैं, या हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं किसी भी रीजन के अंदर कम से कम जो लोएस्ट इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ रहे हैं वो हमारी फंक्शनलिटी को मेंटेन ना कर सकें, या वो हमारी फंक्शनलिटी को डिस्टर्ब ना करें बेसिकली. सच एज द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिल्डिंग और प्लांट कंटेन्स. कि जो आप बिल्डिंग बना रहे हो जिस पर्पस के लिए है, या एक प्लांट आपने बनाया जिस पर्पस के लिए बनाया, हल्के फुल्के अर्थक्वेक को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर का फंक्शन था वो रुका नहीं. दैट विल बी कंडीशन या दैट लिमिट बेसिकली इज नॉन एज सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट. अगर स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज आ जाती है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस थिंग? दिस मींस दैट नो डैमेज नीडिंग रिपेयर बेसिकली. कि डैमेज कोई भी अपीयर होता है स्ट्रक्चर के अंदर, उसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. अगर रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आया इन होल स्ट्रक्चर आइदर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ये आपकी सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट कहलाती है. The appropriate design effort will need to concentrate on the control and limitation of displacements that could occur during the anticipated earthquake. कि जब अर्थक्वेक आया, क्या वो हमारी एक लिमिट सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के अंदर था, माइनर अर्थक्वेक था जिसकी वजह से कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ, स्ट्रक्चर हमारे का जो फंक्शन था वो स्टिल फंक्शनल कंडीशन में है. दैट लिमिट बेसिकली इज नोन एज द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट. Such as in case of reinforced concrete and masonry structures may develop considerable cracking at the serviceability limit state, but no significant yielding of reinforcement resulting in large cracks nor crushing of concrete or masonry should result. कि अगर आपके पास reinforced concrete है, अगर आपके पास masonry construct है, masonry structures हैं, may develop considerable cracking. हो सकता है कि छोटे मोटे क्रैकिंग आ जाए या आ चुके हो हमारे सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, लेकिन कोई भी मटेरियल यील्डिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा जिसकी वजह से मेजर क्रैक्स नहीं आए, और जो है वो हमारा कंक्रीट क्रश नहीं हुआ और मैसनरी क्रश नहीं हुआ. दैट लिमिट बेसिकली इज नोन एज अ सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट. The frequency with which occurrence of an earthquake corresponding to the serviceability limit state may be anticipated will depend on the importance of preserving the functionality of the building. अब मेजर एम क्या है? टू प्रिजर्व द फंक्शनलिटी ऑफ द बिल्डिंग. के जो पर्पस है बिल्डिंग का बनाने का, वो हमारा पर्पस जो है वो मेंटेन रह सके, उस लिमिट को, बाउंड्री को बेसिकली हम एज अ सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट कहते हैं. नाउ सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं? लेट्स सपोज वी हैव फॉर ऑफिस बिल्डिंग सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट मे बी चोजन टू करस्पॉन्ड टू अ लेवल ऑफ शेकिंग लाइकली टू अकर. के लेवल ऑफ शेकिंग, लेट्स सपोज हम एक ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर हम सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट जो है वो एक 50 साल लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्थक्वेक जो है वो हर 50 साल के बाद आता है, तो इस वजह से हम एक 50 साल लाइफ का डिजाइन लाइफ के साथ एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऑफिस बिल्डिंग. तो उसके अंदर जो रिटर्न पीरियड है अर्थक्वेक का वो 50 साल है. तो ये 50 साल बेसिकली जो है वो आपकी कंसीडर होगा एज सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट टाइम. नाउ इन हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एनी टाइप ऑफ गैस स्टेशन, आपका जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, नॉट टू सिंगल पर्सन, टू द होल सिटी, टू द होल एरिया, दैट स्ट्रक्चर्स बेसिकली आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस.
hospital, fire stations, telecommunication centers which require higher degree of protection to preserve the functionality, कि उनकी functionality सिर्फ उस building के अंदर महदूद नहीं है, उसकी functionality overall area को मुतासिर करती है during an emergency cases, and earthquake with a much longer return period will be appropriate, कि हम उसके अंदर जो longer return period का earthquake consider करते हैं, कि earthquake अगर 50 साल आपने ऑफिस बिल्डिंग के लिए लिया है तो रिटर्न पीरियड ऑफ earthquake जो है वो हम 50 साल से ज्यादा कंसीडर करते हैं फॉर स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो कि हमारी फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है एक लॉन्गर रन के लिए, या एक उसकी जो फंक्शनैलिटी है बेसिकली वो नॉट ओनली उस रीजन के लिए है, वो पूरे एरिया को कवर करता है, इमरजेंसी पर्पसेस के लिए भी से चलता है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं, तो उसके लिए आपका रिटर्न पीरियड जो है वो आपका ज्यादा एक्सीड करके हम कंसीडर करते हैं। Now, what are the structural properties while considering the serviceability limit state? What will be the stiffness of the structure? Let's suppose negligible structural and non-structural damage जो है वो आप consider करते हो कि अगर serviceability limit state के अंदर हमने structure को डिजाइन किया है तो हमारे structure के अंदर overall जो stiffness position होगी, toughness position होगी, उसके अंदर कोई भी significant damage नहीं है। Utilities जो facilities हैं वो available हैं, facilities available for immediate reuse, आप अर्थक्वेक आया आप बाहर निकले, अर्थक्वेक जो है वो चला गया, फौरन अपनी स्ट्रक्चर जो है वो यूज करने लग गए, रिपेयर कॉस्ट आर मिनिमम, छोटे छोटे क्रैक्स आए थे, रिपेयर जोड़ के हमने करा दी और सारी चीजें जो है वो हमारा स्ट्रक्चर वापस फंक्शनल कंडीशन में है। दैट स्टेट बेसिकली इज नोन एज अ सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। लेट्स सपोज दिस इज सर्विसिबिलिटी का एक स्ट्रक्चर था, हमने यूज किया, अर्थक्वेक आया, छोटा मोटा एक लोअर रेंज का अर्थक्वेक था, माइनर अर्थक्वेक था जिसकी वजह से माइनर ग्राउंड शेकिंग मूवमेंट्स थी, और हमने जो जैसे ही वो माइनर शेकिंग मूवमेंट्स खत्म हुई हमने अपने स्ट्रक्चर को जो है वो रीयूज कर लिया। दैट कंडीशन विल बी नोन एज अ सर्विसिबिलिटी स्टिफनेस। और जो ओवरऑल आपकी जो ओवरऑल टेक्निक कहलाती है, दैट टेक्निक बेसिकली इज नोन एज अ सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। नाउ वी हैव अ सेकंड थिंग इज अ डैमेज कंट्रोल लिमिट स्टेट, कि सर्विसिबिलिटी एक माइनर ब्रांच